بتائیے تو بھلا تصویروں میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ آوازیں ہو رہی ہیں، کیا ایسی آوازیں آپ نے سنی ہیں؟ جو آوازیں آپ نے سنی ہیں چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے، اگر نہ سنی ہو تو غلط کا نشان لگائیے۔ ان آوازوں کے لیے آپ کے علاقے کی زبان میں کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان لفظوں کو تصویروں کے نیچے لکھیے۔ مدرسے میں وقفے کے دوران کون کون سی آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ گھنٹی کی آواز، بچوں کے باتیں کرنے کی آواز، دوڑنے کی آواز، ٹفن باکس کی آواز۔ جماعت میں آنکھیں موند کر خاموش بیٹھیں، آس پاس کی کون کون سی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہے، ان پر غور کیجیے۔ بچوں کے باتیں کرنے کی آواز، گاڑیوں کی آواز، چڑیا کی آواز، ان تمام آوازوں کو مشترکہ فہرست بنا کر ان پر گفتگو کیجیے۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ آپ کو سنائی دینے والی ان گنت آوازوں میں بہت تنوع ہے۔ ان آوازوں کی اونچی نیچی اور پسندیدہ ناپسندیدہ اس طرح دو الگ الگ درجہ بندی کیجیے۔ آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ عمل کیجیے۔ نمبر 1، مکان میں ریڈیو ٹیپ ریکارڈر پر گانے بجنے کے دوران اسپیکر پر ہاتھ رکھیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ بند کیجیے، آپ کیا محسوس کریں گے؟ جیسے ہی ہم ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ یا اسپیکر پر ہاتھ رکھتے ہیں ہمارا ہاتھ تھر تھرانے لگتا ہے۔ نمبر 2، ایک ربر بینڈ لے کر تصویر میں بتائے ہوئے طریقے سے اس کا ایک سرا کھینچ کر چھوڑیے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ربر بینڈ کی حرکت کے علاوہ آپ کو دوسری کون سی معلومات حاصل ہوتی ہے؟ جیسے ہی ہم ربر کو چھوڑتے ہیں ربر اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے، لیکن ربر ہم کو اپنی جگہ پر ہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 3، ایک طبلہ لے کر اس کے پردے پر تھوڑا سا بھوسا، رائی کے دانے یا ریت پھیلائیے، پردے پر انگلی سے ضرب لگائیے۔ آواز ہونے کے دوران کیا نظر آتا ہے؟ آواز بند ہونے پر کیا دکھائی دیتا ہے؟ جیسے ہی ہم طبلے پر ہاتھ سے ضرب لگاتے ہیں رائی کے دانے اچھلنے لگتے ہیں۔ آواز پیدا کرنے والی چیزوں یا اسپیکر کا پردہ، ربر بینڈ، طبلے کا پردہ، ان کی مخصوص آواز میں ہلچل ہوتی ہے، یعنی ان چیزوں میں ایک قسم کی حرکت ہوتی ہے۔ تیز حرکت سے اہتزاز پیدا ہوتا ہے، یعنی شے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ آواز پیدا کرنے کے لیے کسی بھی چیز میں ارتعاش ہونا ضروری ہے۔ چیز کے مرتعش رہنے تک ہمیں آواز سنائی دیتی ہے، ارتعاش کے رکنے پر آواز بند ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں علم صوت، آواز، بازگشت، آواز کا پیدا ہونا، ترسیل اور ان کے اثرات کی سائنس کو علم صوت کہتے ہیں۔ آواز کی شدت کی پیمائش ڈیسیبل میں کرتے ہیں۔ ہمارے گلے کے نرخرے میں موجود صوتی ریشوں کے ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ نرخرے سے نکلنے والی آواز کی سطح صوتی ریشوں کی سختی پر منحصر ہوتی ہے۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ پانی سے بھرا ہوا ایک برتن لیجئے، اس کے کنارے پر ہلکی سی ضرب لگائیے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ برتن کے پانی پر لہریں کیوں نظر آتی ہے؟ آواز کیوں کر سنائی دیتی ہے؟ آواز کے منبع کے اطراف ہوا موجود ہوتی ہے۔ آواز کے منبع میں ارتعاش ہونے پر اس سے متصل ہوا کی تہ بھی مرتعش ہوتی ہے۔ آواز کے منبع سے تمام سمتوں میں آواز کے ارتعاش کی لہریں پھیل جاتی ہے۔ ان لہروں کو ہی آواز کی لہریں کہتے ہیں۔ یہ لہریں جب ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، کان کے جوف میں نازک پردہ ہوتا ہے، وہ مرتعش ہوتا ہے۔ اس ارتعاش کی وجہ سے احساس کان کے عصبی خلیات کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے اور ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔ آواز کی اشاعت۔ عمل نمبر 1، 2 غبارے لیجئے، ایک میں ہوا اور دوسرے میں پانی بھریے۔ ہوا سے بھرا ہوا غبارہ تصویر میں بتائے ہوئے طریقے سے کان کے قریب مضبوطی سے پکڑ کر رکھیے۔
गुब्बारे को उंगली से रगड़िए और आवाज़ सुनिए। यही अमल पानी से भरे हुए गुब्बारे के साथ कीजिए। किस गुब्बारे से आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है? अमल नंबर 2, एक बड़े मेज़ की जानिब आप खड़े रहिए और दूसरी जानिब दोस्त को खड़ा कीजिए। दोस्त से कहिए कि वो मेज़ पर उंगली से ज़रब लगाए, आवाज़ मध्यम सुनाई देगी। अब आप कान मेज़ पर लगाइए और दोस्त को उसी तरह ज़रब लगाने के लिए कहिए। आप क्या महसूस करते हैं? हवा, पानी या किसी ठोस शय में लहरों की शक्ल में सफ़र करके आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन हवा की बनिस्बत माए में आवाज़ की इशाअत ज़्यादा वाज़ेह होती है, जबकि ठोस शय में ये सबसे ज़्यादा वाज़ेह सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? आवाज़ की लहरों की इशाअत मुख्तलिफ वास्तों में मुख्तलिफ रफ्तार से होती है। आवाज़ की इशाअत गैस की बनिस्बत माए में और माए की बनिस्बत ठोस में बहुत तेज़ रफ्तार होती है। नया लफ्ज़ सीखिए, आवाज़ की इशाअत। आवाज़ के मंबे से, मंबा यानी जहाँ से आवाज़ निकलती है, वहाँ से आवाज़ की लहरों का मकाम तमाम सिमतों में फैलना आवाज़ की इशाअत कहलाता है। आवाज़ की इशाअत के वास्ते, आवाज़ के मंबे के अतराफ मौजूद जिस शय के ज़रिए आवाज़ फैलती है, आवाज़ की लहरें फैलती हैं, उसे आवाज़ की इशाअत का वास्ता कहते हैं। हमने तजुर्बात के दरमियान गुब्बारों में पानी और हवा का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हवा और पानी ये आवाज़ के वास्ते हैं। दूसरी मर्तबा तजुर्बे के दरमियान हमने एक मेज़ यानी टेबल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी आवाज़ टेबल के अंदर से गुज़रती है, इसलिए टेबल भी आवाज़ की इशाअत का वास्ता है। आइए गौर करें, एक खाली बर्तन में लटका हुआ घंटा बजने पर क्या उसकी आवाज़ सुनाई देगी? खाली बर्तन में लटका हुआ घंटा बजने पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर वास्ता नहीं है। नया लफ्ज़ सीखिए, खला यानी ऐसी मुकम्मल तौर पर खाली जगह जहाँ पर हवा ना हो। मुशाहिदा करके बहस कीजिए। शक्ल देखकर बताइए कि सबसे भली लगने वाली आवाज़ कौन सी है। बच्चे के गाने की आवाज़ सबसे भली लगने वाली आवाज़ है। किन आवाज़ों से लोगों को तकलीफ़ होती है? ऊंची आवाज़ों से लोगों को तकलीफ़ होती है। शोर और सूती आलूदगी, ऊंची आवाज़ करख्त महसूस होती है, वो सुनने में मीठी नहीं लगती। ऐसी आवाज़ों से शोर पैदा होता है। ऊपर की तस्वीर देखकर अलग अलग आवाज़ों की फहरिस्त बनाइए। ऐसे माहौल में मरीज़ को कैसा महसूस होगा? क्या आप ऐसे माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे? ऊपर के दोनों वाक़यात का मंज़र अतराफ़ व इकनाफ़ का है। कुछ आवाज़ें भली मालूम होती है तो कुछ आवाज़ें तकलीफ़दा होती हैं। बुलंद या मसलसल आवाज़, शोर, इससे इलाके के लोगों पर अनगिनत मुज़िर असरात यानी नुकसानदा असरात हो सकते हैं। सुनने की सलाहियत कम होकर बहरापन पैदा हो सकता है। दिमागी थकन महसूस होती है। चिड़चिड़ापन पैदा होता है। सुकून नहीं मिलता। अच्छी तवज्जो देकर काम नहीं किया जा सकता। अतराफ़ व इकनाफ़ के मसलसल शोर से होने वाले मुज़िर असरात, नुकसानदा असरात को हम सूती आलूदगी कहते हैं। सूती आलूदगी यानी समात के लिए नाकाबिले बर्दाश्त आवाज़ का पैदा होना। ऐसी आवाज़ें जो हमको तकलीफ़ देती हैं, उन आवाज़ों को सूती आलूदगी कहते हैं। सूती आलूदगी पर काबू पाने के लिए तदाबीर। नंबर 1, गाड़ियों के करख्त हॉर्न ज़रूरत ना हो तो ना बजाएं। नंबर 2, घर के टीवी रेडियो की आवाज़ें इतनी रखें कि वो सिर्फ़ आपकी हद तक ही रहें। नंबर 3,
सवारियों की गैर ज़रूरी आवाज़ कम करने के लिए उनकी बाकायदगी से जांच करवाएं। नंबर 4, कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आबादी से मुनासिब फासले पर हों। हमेशा याद रखिए, कुछ आवाज़ों से हम महफूज हों तब भी दूसरों को उनसे तकलीफ़ हो सकती है। हैरत अंगेज़ रोबिन और वुडकॉक नामी परिंदे ज़मीन में रहने वाले केचुए की आवाज़ पहचानकर अपना शिकार हासिल कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके समई आज़ा इंतहाई हिस्सास होते हैं। टिड्डियों की कुछ किस्में हवा में उड़ते हुए अपने पैर एक दूसरे से रगड़कर आवाज़ पैदा करते हैं। शहद की मक्खी और मच्छर के परों की हरकत से आवाज़ पैदा होती है। क्या आपने ऐसी आवाज़ें सुनी हैं? हमने क्या सीखा? नंबर 1, आवाज़ के पैदा होने के लिए इर्तियाश की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वीडियो में आपको एक रबर का इर्तियाश दिखाया गया है। इर्तियाश यानी एक ही जगह मसलसल बहुत ज़्यादा हरकत। रबर अपनी जगह पर हरकत कर रहा है, बार बार दोहरी हरकत हो रही है रबर के अंदर। इसे हम इर्तियाश कहते हैं, वाइब्रेशन। इसी वाइब्रेशन या इर्तियाश की वजह से आवाज़ पैदा होती है। इन तस्वीर के अंदर भी आपको गिटार के तारों में, पेंडुलम में, झूले में और मक्खी के परों में इर्तियाश नज़र आ रहा है। नंबर 2, आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ता ज़रूरी है। आवाज़ की इशाअत यानी आवाज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वास्ते की, मीडियम की ज़रूरत होती है। नंबर 3, आवाज़ की इशाअत गैस, माए और ठोस वास्तों के ज़रिए होती है। तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, हमने ऊपर तजुर्बात में भी देखे। एक गुब्बारे में हमने हवा भरी थी, दूसरे गुब्बारे में पानी। ये हवा और पानी यहाँ पर आवाज़ की इशाअत के वास्ते हैं। इसी तरह टेबल से आवाज़ सुनाई दे रही थी, यहाँ पर टेबल और धागा भी आवाज़ की इशाअत के वास्ते हैं। इनमें से आवाज़ गुज़रती है। नंबर 4, नापसंदीदा, बेसुरी और बुलंद आवाज़ को शोर कहते हैं। नंबर 5, मसलसल शोर की वजह से सूती आलूदगी होती है। सूती आलूदगी से हमारी सेहत पर बुरे असरात होते हैं। नंबर 6, आमदोरफ्त और सनती मकामात पर आलूदगी सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 7, सूती आलूदगी एक समाजी मसला है। सूती आलूदगी रोकने की तदाबीर सबको करना चाहिए। नंबर 8, मदरसे, अस्पताल जैसे मकामात पर हॉर्न बजाना मना होता है। ऐसे कवानीन पर हमें हमेशा अमल करना चाहिए।